Hello students, welcome back. Today in science I am going to start a new chapter and the name of the chapter is Keeping Safe. Okay, now look at the book. Rahul's father was in a hurry and he forgot to tie the seat belt before driving his car to the office. While driving, he picked up his mobile phone and started dialing a number. Suddenly, the traffic in front of his car stopped and his car banged into another car. Because of his carelessness, he not only had to pay a huge amount to the owner of the car, but also faced the embarrassment of the crowd that gathered there. So what happened one morning, राहुल फादर वॉज वेरी लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. सो वो जल्दी में अपना सीट बेल्ट जो होता है कार का वो बांधना भूल गए. ऑन द वे ही स्टार्टेड डायलिंग अ नंबर. ओके, सडनली क्या होता है कि ट्रैफिक हो जाता है और सामने वाला कार रुक जाता है, बट राहुल के फादर ध्यान नहीं देते हैं एंड अल्टीमेटली उनका कार जो है सामने वाले कार से कोलाइड हो जाता है. ओके, तो टकरा जब जाता है, अब क्या होगा? नाउ ही हैड टू पे कंपनसेशन, इजंट इट? उनको आपको फाइन देना होगा. वो सारा जो चार्जेस जो लगा है, उनका सारा जो नुकसान हुआ है वो सभी का उनको पेमेंट करना पड़ेगा राहुल्स के फादर को. ओके, because of his carelessness, he not only had to pay a huge amount to the owner of the car, but also faced the embarrassment of the crowd that gathered there. So उनको पेमेंट भी करना हुआ, साथ ही साथ उनको बहुत एम्बेरसमेंट फील हुआ सभी के सामने. ये इंसिडेंट हुआ, जो ये एक्सीडेंट हुआ सभी के सामने, एंड दिस इज़ वेरी एम्बेरसिंग मोमेंट फॉर एवरीबडी, इजंट इट? सो उनको फाइन भी लगा, उन्हें एम्बेरसमेंट भी फील हुआ. सो इस तरह से एक केयरलेसनेस के कारण उनको कितना प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा. Besides, he also had to pay for the repair of his own car. That day, he decided never to be careless again. और तो और उनका भी कार टूट गया, खराब हो गया. ग्लास, सामने का जो वो ग्लास वगैरह होता है, फ्रंट लाइट, वो सब टूट गया. तो वो सब के लिए उनको खुद का भी रिपेयर करना पड़ा. तो अनफॉर्चुनेटली उनका क्या हुआ कि दोनों तरफ से ही नुकसान हुआ, और वो ये प्रॉमिस किया खुद से कि अब से वो कभी ऐसा केयरलेस होकर ड्राइव नहीं करेंगे. ओके, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर. In this chapter, we will learn now more how to be safe inside and outside our home, and also some first aid tips. So इस तरह से अगर हम लोग को एक्सीडेंट से बचना हो, we should be very careful and alert. Okay, we should follow safety rules, we should follow traffic signals, isn't it? We should follow safety rules in our home, outside our home, everywhere, isn't it? Now in this chapter we are going to study about different ways, means what are the ways by which we can prevent ourselves at home and at outside the home. Okay, now the first one is safety at home. So what type of precautions we have to take at home? किस तरह से हम लोग घर पर सेफ रहें. ओके, कुछ भी घर पे भी हो सकता है इंसिडेंट, ऐसा कोई ये नहीं है. नाइफ से कभी फिंगर कट गया, कभी फायर से कुछ जल गया. सो दीज आर ऑल द इंसिडेंट दैट मे हैपन एट होम ऑल्सो. So to overcome with this type of incident, what we have to do is, everything is given in this chapter. Now, safety at home. Most of us think that our home is the safest place where no accident can happen. हम लोग को ये लगता है कि हम लोग घर पर हैं तो सेफ है. नो, दैट्स नॉट राइट. घर पे भी हम लोग सेफ नहीं हैं. इफ़ वी आर केयरलेस, वी आर नॉट सेफ एट होम ऑल्सो. But this is wrong. Accident can take place everywhere, anywhere. In the kitchen, bathroom, at other places where when we are careless. So हम लोगों का जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट जो कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी. घर पर हो सकता है, किचन में हो सकता है, बाथरूम हो सकता है, बाहर हो सकता है, कहीं पे भी.
But if we follow the safety rules at home, then we can avoid accident. अगर if हम लोग घर पर कुछ rules follow करते हैं, when we work according to that rules, we can prevent ourselves from any accident. Okay. Now safety in the kitchen. How we have to means how we have to be careful in kitchen, or some of the remedy measures for the safety in the kitchen. Okay. Number 1, handle sharp objects like knives very carefully. Do not play with them. So sharp objects को हम लोग को सही से होल्ड करना, सही से काम करना उसे. ओके. और उनसे खेलना तो बिल्कुल भी नहीं है. Suppose knife, scissor, screw, these are all sharp objects, isn't it? इन सभी से हम लोग को खेलना नहीं चाहिए. Next, be careful when lighting something with matches. Always throw the lighted matchstick after putting it off. Throw it away from any item which can catch fire easily. Throw it away from any item which can catch fire easily. So while using matchstick we should also be very careful. हम लोग को matchstick के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. हम लोग अगर matchstick को लाइट कर रहे हैं तो उसे बंद कर ही फेंकना चाहिए कहीं पे भी, और उसे कोई ऐसा जगह में ना फेंके जिसके कारण जो है वो फायर कैच कर लेता. ओके. मीन्स हम लोग को मैचस्टिक को ऐसे जलता हुआ छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर फेंक रहे हैं तो उसे बंद कर दिए. जलता हुआ छोड़ेंगे तो हम लोग को क्या होगा कि अदर चीज़ उससे आग लग जाएगा, अदर चीज़ जो है उससे आग लग सकता है. ओके. यूज़ ओवन, ग्लव्स और टोंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स, इजंट इट? हॉट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, टोंग्स, ग्लव्स यूज़ करते हैं. गिव एज गिवन इन द पिक्चर, ये ग्लव्स होता है, इजंट इट? ये जो है गर्म या हॉट चीज़ से हम लोग को सेव करता है. ओके. बचाता है. और टोंग्स होता है काइंड ऑफ स्टील होल्डर, काइंड ऑफ होल्डर मेड ऑफ स्टील, इजंट इट? एक ऐसा ये है जो स्टील का बना होता है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं पकड़ने के लिए. डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वॉकिंग इन द किचन एज दे कैच फायर इजीली. और हम लोगों को किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स पहन कर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स जो है वो फायर को इजीली कैच कर लेता है. उसकी वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकती है, इजंट इट? सो इसलिए हम लोगों को सिंथेटिक क्लोथ्स अवॉइड करना चाहिए किचन में. अवॉइड स्पिलिंग एनीथिंग ऑन द फ्लोर. इफ़ यू स्पिल समथिंग देन क्लीन इट क्विकली. कुछ भी ज़मीन पर ना गिराओ, और अगर गिरता भी है तो उसे फ़ौरन साफ़ कर लेना चाहिए, इजंट इट? बिकॉज कोई भी गिर सकता है, स्लिप कर सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. अगर हम लोग लिटिल केयरलेस में लीड टू मोर डेंजरस, इजंट इट? थोड़ा सा भी केयरलेस रहे हम लोग तो जैसे सिचुएशंस बहुत डेंजर हो सकता है. स्विच ऑफ द गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज़. जब गैस स्टोव काम ना हो तो उसे ऑफ कर देना चाहिए. गैस पाइप्स मस्ट बी चेक रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज. और जो सिलेंडर में जो गैस पाइप होता है, यू हैव टू चेक आइदर ट्वाइस थ्राइस इन अ वीक. ओके. एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, सो दैट यू कैन बी सेफ, इजंट इट? मतलब फ्यूचर में सेफ्टी, खुद की सेफ्टी के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये सब जो फायर कैचिंग ऑब्जेक्ट्स है, इससे क्या करना होगा, इसे प्रोटेक्शन के लिए उसे चेक करते रहना होगा. ओके. सो दैट्स ऑल. सेफ्टी इन द बाथरूम we would discuss in the next class. Okay. Thank you.